यस सत श्री अकाल स्टूडेंट्स अज असी इको लैक्चर दे विच क्यूब एंड क्यूब रूट्स को कवर करांगे। स्टूडेंट सब तो पहले आप सीखिए कि जे असी एक्स क्यूब लिखते हैं इसका मतलब की है। इसका मतलब है एक्स नू एक्स दे नाल 3 बारी मल्टीप्लाई करना। बिल्कुल वैसे ही जे साडे को 3 क्यूब है तो इन्हू असी कहने 3 की पावर 3 या असी कहते हैं 3 क्यूब मतलब 3 नो 3 दे नाल 2 बारी नहीं 3 बारी मल्टीप्लाई किया साडे को आ गया 27। इन्हू कहते हैं क्यूब। ये क्यूब का मतलब है हम तुहानू पता ही है स्टूडेंट्स कि 1 क्यूब की होएगा 1 into 1 into 1 1 होएगा 2 क्यूब होएगा 8 3 क्यूब बची पाएगा 27। लेकिन स्टूडेंट्स 4 क्यूब की होएगा 4 into 4 16 into 4 64। बेटा दी आवाज नहीं आ रही। 5 क्यूब जे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ स्टूडेंट्स सो 5 क्यूब जेड़ा वा वो की है वो है 5 into 5 into 5। सो इसे 5 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ को आ जाएगा 25 into 5 that is 125। ये तो स्टूडेंट्स क्यूब हो गया राइट। हुण जेडे ए नंबर्स ने किहड़े नंबर्स किसी भी नंबर का क्यूब करके जो रिजल्ट आंदा वा उन्होंने स्टूडेंट्स असी की कहने आ परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है जी परफेक्ट क्यूब्स की होए कोई भी ऐसे नंबर लिया ठीक है मान लो असी ले लिया 10 का असी क्यूब किया तो साडे कोल आ गया 1000। ये जो 1000 है ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है जी हुण असी शो करना वा कि कोई बंदा कह रहा वा कि शो करो कि जिहड़ा आ नंबर आ जिवें कि 189 ए परफेक्ट क्यूब नहीं है। असी शो करना किस तरह शो करांगे आपां इहदी फैक्टराइजेशन करांगे 189 असी लिखिया 189 लिख के असी देखांगे कि किस नंबर में डिवाइड होगा। ये 3 नाल डिवाइड हो रहा 6 × 18 3 × 9 फिर 3 नाल डिवाइड हो रहा 3 दूनी 6 फिर 3 नाल डिवाइड हो रहा 7 × 21। ਇਹਦਾ मतलब 189 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 189 ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ मतलब 3 × 3 × 3 into 7। ਹੁਣ ਦੇਖੋ स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ क्या ਸੀ ਕਿ परफेक्ट क्यूब ਉਹ ਹੁੰਦੇ परफेक्ट क्यूब ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आवाज नहीं आ रही। परफेक्ट क्यूब ਅਸੀਂ क्या ਸੀ बच्चों यस परफेक्ट क्यूब ਅਸੀਂ क्या ਸੀ स्टूडेंट्स ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਵਾਰੀ ਫੈਕਟਰ ਆਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ 189 ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है 3 क्यूब तो है मगर 7 भी आ गया और कोई चीज नहीं होनी चाहिए सी। हाँ जे 7 into 7 into 7 ये भी 3 बारी हुंदा ते जो रिजल्टिंग नंबर हुंदा वो परफेक्ट क्यूब हुंदा। ठीक है स्टूडेंट्स क्योंकि ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया ये 2 फैक्टर होर नहीं है इस करके असी कहांगे कि 189 परफेक्ट क्यूब नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਕਿ 216 ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 216 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 2 × 1 2 8 × 2 16 0 ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ 2 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 5 4 ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ 2 दूनी 4
7 फिर असी करांगे 9 ਤੇ 27 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ 216 ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਰੀਏ 2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਵਾਰੀ ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਹੈ 3 into 3 into 3 क्योंकि 3 into 3 9 है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ 3 ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਲ ਰਾਈਟ ठीक है स्टूडेंट्स ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈ 3087 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਵਾ x ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 into 2 into 2 3 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 into 3 ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਉਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਏ the 3087 ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚੋ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੇ 30 3 दूना 6 9 ਤੇ 27 फिर 3 ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3 ਤੇ 9 3 ਚੌਕੀ 12 3 ਤੇ फिर 3 ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸੋਚੋ ਜੀ 3 ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ठीक है ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਵਾ 7 5 ਸੱਚੋ ਕੇ 28 6 9 7 3 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 7 into 7 49 ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3087 ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ 3 ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ ਬਟ ਜੇ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ 3 ਇਹੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੇ 7 into 7 into 7 ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋ 3087 ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ 3087 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸੇ ਸਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਕਿ 3087 ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਬਣੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ 3087 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 into 2 into 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 2 दूनी 4 दूनी 8 8 ਤੇ 24 ਜੇ ਇਹਨੂੰ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗਾ ਬਟ 24 ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 3 ਆਲ ਰਾਈਟ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ ਆਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ -1 ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖੋ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 1 into 1 into 1 ਤੇ 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਈਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮਾਈਨਸ into ਮਾਈਨਸ प्लस into माइनस फिर माइनस ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਊਬ 네ਗੇਟਿਵ ਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ -3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੱਢੋ। -3 ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, -3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, that is 27, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਸ ਲਾ। ਕਿਉਂ? क्योंकि ओ सॉरी स्केयर नहीं, क्यों? ऑलराइट, -27। हुण कोई बंदा कभी -5 का क्यूब, अच्छा इत्थे एक बड़ी ज्ञान की गल, ठीक है जी, बड़े इंपॉर्टेंट गल है, बड़े बच्चे गलतियां करते हैं वड्डी क्लास च। जे मैं -5 का क्यूब इदा लिखा कि ये ठीक है कि नहीं? ये की चीज है? ये हैगा वा माइनस, क्यूब दे विच माइनस नहीं है, ते 5 दा क्यूब, ये -5 दा क्यूब मैं इदा लिखांगा, कदे भी मैं इदा नहीं लिखांगा। इहदा मतलब हो रहा, इहदा मतलब की है -5 दा क्यूब। अच्छा हुण इत्थे गड़बड़ आ सकती है, किदां? जे कोई बंदा कहे यार -2 दा क्यूब, एक ही होएगा। हुण इहदे वास्ते माइनस मैं बाहर रखा, तो -2 का क्यूब मैनू पता वा की होएगा -8। और मैं पढ़िया कि किसी भी माइनस नंबर का क्यूब माइनस ही हुंदा वा, ते माइनस इंटू माइनस से फिर 8 बन जाएगा। ये ख्याल रखना, ठीक है स्टूडेंट्स? ऑल राइट, हुण पता लग गया कि किसी भी माइनस नंबर का क्यूब माइनस ही हुंदा है। हुण असीं गल करते हैं कि किसी रैशनल नंबर का क्यूब की हुंदा। सानू पता स्टूडेंट्स, किसी भी रैशनल नंबर नूं मैं p/q की फॉर्म च लिख सकता वा, जिथे कि p और q की ने इंटीजर्स ते q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पहली कंडीशन, ते ये दूजी कंडीशन जो पूरियां हो जान, ते फिर ये सारे नंबर जेडे p/q की फॉर्म च होण, उन्हां नूं मैं की कहना वा? रैशनल नंबर। याद रखना, NUMBER, इस तरह के भी इनफाइनाइट नंबर ने। हुण आपां गल करते हैं जिवें कि 2/3 है स्टूडेंट्स, ठीक है? मैं 2/3 आपां देखते हैं ओदा क्यूब की होएगा। वेट, यस, वो कहंदा वा 2/3 इरेशनल नंबर है, एदा क्यूब। तो स्टूडेंट्स इत्थे बड़ी सिंपल जिहा फार्मूला लग जाएगा, तुहानूं पता वा x/y, ये सारे दी पावर जे m होवे इज इक्वल टू x दी पावर भी m हो जाएगी जो ब्रैकेट खुलेगी, डिवाइडेड बाय y दी पावर भी m हो जाएगी, ठीक है? सो 2 दी पावर 3 वो हो गया 8, ते 3 दी पावर 3 वो हो गया 27, ठीक है जी। अच्छा हुण एक होर करदा, ओ कहंदा वा -2 डिवाइडेड बाय 3 एदा क्यूब करो जी। ऊपर नंबर की है -2, एदा क्यूब कर दो। थले नंबर की है 3, ओदा भी क्यूब कर दो। ये आ गया तुहाडे को -8 डिवाइडेड बाय 3 दा क्यूब 20। तो तुसीं माइनस नंबर का क्यूब करना है, सीधा ही पॉजिटिव का क्यूब करो, नाल माइनस ला दो। वाओ स्टूडेंट्स, ये भी कवर हो गया। एक कोई लेक्चर च असीं सारा एक कवर कर, ठीक है जी। हुण के देखो स्टूडेंट्स, असीं देखा कि जिहड़ा ईवन नंबर है, ईवन नंबर का जिहड़ा क्यूब है वो ईवन ही होएगा, ते जिहड़ा ऑड नंबर का जिहड़ा क्यूब है वो हमेशा ऑड हुंदा। अरे यार ये गल सही है कि नहीं? देख देखो 2 दा क्यूब की होएगा 8, ईवन है, ते असीं देखिया 3 दा क्यूब ये हैगा वा 27। अरे आ भी ऑड है, आ भी ऑड है। अच्छा 1 दा देखिए, 1 दा क्यूब 1, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ओ वाह बिल्कुल सही। ये 10 दा क्यूब करिए वो आ गया 1000, वाह ये भी ईवन है। 10 ये भी ईवन है। तो जे आप 11 का क्यूब कर रही है, मैनू पता नहीं की हुंदा वा, मैं तुहानू दस दूंगा। ये होएगा 121 into 11, so this is equal to 121, 121 that is equal to 1331। तुसी देखो स्टूडेंट्स ये भी ऑड है। ऑल राइट, ईवन नंबर का क्यूब जेड़ा वा ओ ईवन है,
ऑड नंबर दा क्यूब जेड़ा वो ऑड है। ऑल राइट, ये भी सानू एक समझ आ गई चीज गल स्टूडेंट्स। इस तो बाद बहुत सारे सम्स ने स्टूडेंट्स हो तुसी कर सकते हो, बट मान लो कि सानू कोई इस तरह की मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, ਉਹਦਾ क्यूब कितना करांगे। आओ स्टूडेंट्स ए भी देखिए, मान लो कोई कहंदा 1 2/3 ਇਹਦਾ क्यूब करो। सो स्टूडेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना पएगा, इदा करो कि 1 क्यूब करता 3 क्यूब करता, नहीं गलत हो जाएगा। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन नो सिंपल फ्रैक्शन च कन्वर्ट करो। कितना 3 1 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 3 ये सारे दा क्यूब 5 क्यूब 125 थल्ले 3 क्यूब 27 इदा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह मैं तुहानू कुछ होमवर्क दवांगा, तुसी ये होमवर्क में कोशिश करो करन दी। ठीक है, हुण स्टूडेंट्स मैं तुहानू एक सिखाना शॉर्टकट मैथड किसी दा क्यूब करन नूं। देखो जे कोई बंदा कहे यार 71 दा क्यूब करो, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पहला आपां नूं 71 नूं 71 नाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा 71 7 1 7 7 7 49, ये आ गया जी 7 7 14 असला 1 0 5। इनू फिर 71 ना करना पड़ेगा, ये आ गया जी 5 0 4 1, फिर 7 ना करो। ठीक है ना, ठीक कर रहे ना मैं, करो 7 ना करना 7 1 7 7 चौके 28, फिर 7 पंजे 35। एम आई राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया 1 7 4 11 असला 1 9 7 5 ते 3। बहुत लंबा आ गया नंबर 3,57,911। एम आई राइट, गलत हो गया थोड़ा, ये कर लेने हैं। अच्छा एक मिनट देख लेने हैं। एक दा 1 7 4 7 8 10 11 असला 1, ठीक है। 8 + 1 9 7 7, देखो ना 7 1 7 आ गया। ठीक है ना, नहीं ठीक है, ओके फाइन, वो डाउट सी क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम, चलेगा कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट, ये आ गया 3,57,911। बट ये तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पई, कोई इजी तरीका देखो। इजी तरीका ये है स्टूडेंट, सानू पता वा कि a + b दा जेड़ा क्यूब है वो हुंदा वा a³ + 3, बोलो स्टूडेंट्स, a² b, फिर a दी पावर 3 थी, a दी पावर 2 ते हुण a दी पावर 1। सारा मैथ्स एक पैटर्न है, b दी पावर 0 सी, b दी पावर 1, b दी पावर 2 ते एंड च b दी पावर 3। ऑल राइट, आ फॉर्मूला जी इदां जिवें मैं तुहानू दस्सिया ना, उदां ही 3-4 बार लिख के याद कर। हुण इहदे नाल आ जुगाड़ बड़ा वधिया बनदा। 70 + 1 दा क्यूब कर लो, तुहानू तुहाडे भंगड़े पैने शुरू हो जाते। ऑल राइट, हुण की करो, इत्थे a की बन गया साडा, बोलो जी 70, b की बन गया 1। 70 का क्यूब करो, बहुत सिंपल है। 70 के क्यूब दे विच करना ना 0 है ना, 0 3 बारी आ जाओ सीधा ही। हुण करो 7 7 49, बस तुसी 49 नूं 7 ना एक बारी कर लो, गल बन गई। बोलो जी 9 7 9 7 63, 6 7 चौके 28 ते 6, बोलो जी 4। ठीक है, चेक कर लो, 9 7 63, 6 7 चौके 28 6 4। ठीक है, ये आ गया 3 4 3 आ गया जी, +3 a² b, 3 a² करो 7 7 49 a² है ना, 0 आ 0 2 बारी कर, बहुत सिंपल। b1 लिखने की लोड़ ही कोई। वाह, ओके स्टूडेंट्स, हुण आगे चलिए। आगे आ गया 3a कितना वा जी 70, b² 1 लिखने की लोड़ ही कोई नहीं, प्लस b² 1 × 1 × 1 1 नहीं होएगा। कितना ईजी है ये, जिहड़ा साडा मल्टीप्लिकेशन दा सम है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन दा सम, ये साडा मल्टीप्लिकेशन दा सम साडा एडिशन दे सम दे विच बदल गया। हुण देखो असीं की करांगे, एक ही आ गया सानू पता ही है, असीं ऐड कर लेने हैं बस 3 4 3 0 0 0, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 भी ऐड करना, 7 21 210 भी ऐड करना। इत्थे की आ जाएगा, इत्थे मड़ जा कर लो 0 0 9 बोलो जी 27 2 4
बोलो जी, 4 4 3 12 ते 2 14। ठीक है जी, देखो ना 0 0 9 3 27 2 4 3 12 14। इतने ये भी कर लो, पहले 3 अखर लिखो 700 ऐ कर लो, बस इतने गलती नहीं होनी चाहिए। अगे लिख लो 14, 3 दे थले 4 आ 4 दे थले 1, इन्हें ऐड कर लो। इतने आ गया तुहाडा 1, इतने आ गया जी 1, इतने आ गया 7 जमा 2 9, इतने आ गया 4 + 3 7, 4 + 1 5 ते 3। तुसी देखो जी बच्चे ने आरो पहलों ही लाई है, ये दोनों सेम आ गए। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट्स, सो ये इस तरह तुसी प्लीज हुन 81 क्यूब 91 क्यूब, ठीक है जी 101 क्यूब ते 61 क्यूब प्लीज मैनू करके ये तुहाडा होमवर्क है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस तो अलावा और तुसी देखो जी, हाँ हुण लास्ट विच आपां की करदे हां, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ क्यूब रूट। ਅਸੀਂ क्यूब रूट ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ क्यूब रूट। देखो स्टूडेंट्स, क्यूब रूट का क्यों मतलब है, देखो पहला ਅਸੀਂ स्क्वायर रूट पढ़िया सी, याद है ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਾ स्क्वायर रूट। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਾ क्यूब रूट। ਇਹ 5 ਦਾ स्क्वायर रूट ਆ, ਇਹ 5 ਦਾ क्यूब रूट ਆ। याद करो 5 ਦਾ स्क्वायर रूट मैं दसिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। इदा ही स्टूडेंट्स 5 ਦਾ क्यूब रूट की होएगा, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्यूब रूट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 64, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ क्यूब रूट ਕੱਢੋ। क्यूब रूट ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ स्क्वायर रूट ਅਸੀਂ ਐ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ क्यूब रूट ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3 ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ 3 ਪਾਇਓ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ 3 ਪਾ ਦੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ 3 × 64 ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 3 ਪਾਣਾ ਵਾ, ਐ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਪਾ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 64 ਦਾ क्यूब रूट। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ क्यूब रूट ਦਾ ਮਤਲਬ 64 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। वेरी गुड। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 64 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰੋ, 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1/3। एक ही आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 that is equal to 4। so simple, very good, right students। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 2744, ਇਹਦਾ क्यूब रूट ਕੱਢੋ। ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ क्यूब रूट। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 2744 ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, बोलो स्टूडेंट्स, बहुत प्यारे बच्चे आ, सानू 2744 दे की करने पैणगे, कोई बच्चा बोलेगा सानू 2744। वाओ वाओ, बहुत अच्छा। 2 ना करो, 2 ਤੇ 6 7, फिर 2 ना जाएगा। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ 2 ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। 6 इतने आएगा 2 × 16, 6 × 12, वाह, फिर 2 ना जाएगा, 3 4 3, ओहो हाँ 343 होने आया सी, 7 नाल जाएगा, 7 2 चौके 28, 9 7 63, 7 7। एक क्यूब रूट, वाह, सानू पता है केड़ा नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। हुण असीं की करांगे, दिस इज इक्वल टू 2744। 2744 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, 2744 ਦਾ ਆਪਾਂ क्यूब रूट ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, क्यूब रूट ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, 1/3 ਪਾਵਰ। ਹੁਣ 2744 ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਆ 2 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, 2 × 2 × 2,
मतलब 2 ਦੀ ਪਾਵਰ बोलो बच्चों ओके इत्थे की आएगा बच्चों आ 7 ਦੀ की पावर आएगी 7 ਦੀ पावर 1 7 ਦੀ पावर 2 7 ਦੀ पावर 3 बोलो मैं की लिखा 7 ਦੀ पावर 3 ਸਰ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ हाँ इधर भी कर सकते हैं ठीक है इत्थे आ गया 1/3 हुण देखो याद रखना स्टूडेंट्स x ਦੀ पावर m into y ਦੀ पावर m पावरां की ने सेम बेस अलग अलग बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर सेम रह जाएगी ये फार्मूला है वो फार्मूला लिखाओ बेस अलग अलग पावर सेम 7 गुना 14 14 ਦੀ पावर 3 सारे ਦੀ पावर 1/3 ये आ गया 14 ਦੀ पावर 3 into 1/3 ਤੁਹਾਡਾ आंसर 14 आ गया राइट स्टूडेंट्स इस तो बाद अपन लास्ट सम करेंगे यस बच्चे बोलो डाउट ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ हाँ जी ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नहीं जे उन्हें क्या वा कि आंसर मिक्स फ्रैक्शन च दो फिर उन्हें मिक्स फ्रैक्शन च कन्वर्ट कर दो जे वो कहंदा वा जिद्दां मान लो कह रहा 7 4/3 ਇਹਦੀ ਕਿਊਬ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 7 ਤੇ 21 7 ਤੇ 21 ਦੀ ਜਮਾ 4 ਬੋਲੋ ਜੀ 21 ਜਮਾ 4 25 क्यूब 25 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੋ 3 ਤੇ 9 ਤੇ 27 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਬਣੇ बोलो बच्चे क्यूब ना बने क्यूब ना बने सर क्यूब ना बने 3 नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता हाँ जी कोई मैंने नंबर दसो जेदा क्यूब ना बने बोलो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई नंबर बोलो जेदा क्यूब ना बने बोलो दसो कोई नंबर जेदा क्यूब ना बने वेट सर बोलो कोई नंबर जेदा क्यूब ना बने ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 2 3 4 तो लेके इनफिनिटी जिन्ने भी नंबर ले लो जे उन्हां दे ऊपर तुसी क्यूब लाओगे कोई ना कोई नंबर बनेगा पता तुसी की कह रहे हो आई थिंक तुसी कह रहे हो कि जेदा क्यूब रूट ना बने क्यूब के क्यूब रूट हाँ सारे दा क्यूब रूट भी सारे दा बनेगा मगर वो डेसिमल च आ जाएगा जिवें के कोई तुहाडे को परफेक्ट क्यूब नहीं है जिमें कि तुहाडे कोल हैगा 20 है ना तुहाडा ये क्वेश्चन सी मेरा ख्याल कि 20 दा वो कहंदा क्यूब रूट कड्डो समझ गए बच्चों एदा क्यूब रूट की होएगा 20 दा सो 20 दा क्यूब रूट यही होएगा जो लिखिया वा या तुसीं इहनूं कैलकुलेटर च कड्डोगे एक तुहानूं इहदे नाल दा होर सम दिना वा जिवें कि कोई बंदा कहंदा वा कि 64 एक सेकंड देखो 64 into 3 एदा क्यूब रूट कटो हुण ए नंबर है 4 ते 12 4 ते 12 6 ते 18 19 हाँ आ नंबर है 192 दा क्यूब रूट कटो आ मान लो तुहानूं सम आ जाएगा 192 दा क्यूब रूट सो इहनूं थोड़ा जिहा सॉल्व कर सकते हैं पूरा नहीं देखो किद्दां सानू पता 192 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 64 into 3 ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ into 1/3 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ 64 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 1/3 ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ
सो ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਆਏਗਾ 64 ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਇਨਟੂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ 3 ਕਿਊਬ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ 3 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 ਇਨਟੂ 3 ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4 into 3 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 by ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਲੈਕਚਰ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਡਾਊਟ? और कोई डाउट बोलो बच्चों। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।